So let's start with Param bro. You can just start. Sure. Hi everyone. Very good to see you all after I guess 2 years. I am 2023 batch pass out. I am an engineer, computer engineer, and currently I'm pursuing my MBA from NMIMS Mumbai. So I'm right now in Mumbai and happy to connect you with online virtually. And yeah, we can move. You will get to know me about like further. So we'll stay connected with the discussion. Now, thank you. Uh, Now we'll move on to the next speaker, Bhargavi. Yeah, hello everyone. My name is Mashi Bhargavi and I'm currently fourth year student of computer engineering. And yes, my majorly am like I work on DS and all. So yeah, you will get to know about me in later when we will have a final discussion and all. Yeah, I hope you will learn something here. Thank you. Thanks. Now we'll continue with Bhargav. Hi all, this is Bhargav. I am a recent graduate student. My branch is of robotics and automation, and currently I am working as a mechatronic engineer in a Fortune 500 company called Lam Research, where they work on making machineries for semiconductor fab. So I hope I can answer your things and I can guide you somewhat better by the end of the session. Sure, sure. Now, uh, Aniket, are you there? Am I audible? Yeah, yeah. Hello. Yeah, so good evening, everyone. Thank you, team Club Iber, once Krish, for giving me this opportunity. Myself, Aniket Patil. I am working as a, we can say, generative AI and data scientist at Sident AI. Sident AI means science-driven enterprise and AI. So it's a startup by one of the professor of Indian Institute of Science. First, I was hired as a project assistant. Now I am working as a full-time employee there. My bachelor's is from electronics and communication, which is like not aligns with what I am doing now. I am working as a computer science person, and yeah, that's all from my side. Thank you. We'll definitely come towards a transition. कि क्या कैसे हुआ. Yeah, Sure, sure. sure. We'll Hope I can answer surely all look your into it. questions. Thank you. So now let's continue with Avinash. Hi everyone, I am Avinash Shanti. Um you can say me as you can call me as a founder or initiator of Club Iber, and I pursued my undergrad from yours and truly GC Gandhinagar, and currently I am pursuing my masters from NIT Karnataka Surathkal in communication engineering and networks. So I guess you can understand that I have chosen a dedicated path in electronics and communication only. We will get to know what's the opportunities and further scopes in this branch, as well as VLSI also. Thank you, all the speakers, for the introduction. Now let's start with the discussion and the key topics that we are here for the panel discussion. Like your advice, your views, what are right now. Some might be controversial too. बस मारा मारी पे मत आता ना guys. बाकी सब ठीक है. And young professionals the सारे working है. Right now everyone is somewhere पे working हो गया या फिर some good universities. So उन्हें experience है. They have internship, एक working experience भी हो गया. So there are many other things we'll cover here. Please continue. Yeah, wait a minute. So like I will explain the flow.
what will be the format. So we'll just ask all the speakers to the common question to all the speakers. So everyone can answer their own view, opinion, and clash हो रहा है तो कोई बात नहीं. It's okay. Entertainment on top. So everyone can just fill in their views, input. So I will just start कि ये कॉमन क्वेश्चन है, सारे स्पीकर्स आंसर कर सकते हैं. कि व्हेन यू फर्स्ट चूज योर ब्रांच, कि तुम्हारा मोटिवेशन क्या था एंड तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मैच करा कि नहीं. आई विल नॉट से कॉलेज, बट एक्सपेक्टेशन से मैच करा कि नहीं ब्रांच. कैन आई स्टार्ट? या श्योर. Sure. जनरली कोई भी बंदा सोचता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. मैं बंदा था और बहुत हल्का फुल्का रहता हूँ मैं बंदा. So when I thought of taking robotics and automation, I was assuming like, okay, I am going to make a chitti robot or something. But when I came to reality and like I'm laughing on myself after my third year or after my second year, really क्या मैं ये बनाने आया था. और फर्स्ट ईयर में मेरा माइंडसेट ऐसा था कि अच्छा चलो एक आयरन मैन बना सकते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है. देन आई केम टू नो अच्छा रोबोटिक्स उतना इवॉल्व नहीं है, वो अभी तक फैंटेसी है. और now we are just making some manipulators or some industrial mobile robots. Autonomy अभी भी बन रहा है और ह्यूमनॉइड को तो बहुत दूर की बात है. तो हाँ, it didn't reach my imagination, but yeah, like at the end of the day मेरे को एक डाउट था कि रोबोटिक्स में क्या मेरे को स्कोप होगा, क्या मैं कुछ सेटल हो पाऊंगा. So in that zone robotics is very good क्योंकि हर जगह रोबोट को रिप्लेस कर रहा है. So not robotics, हम तो वैसे भी रहेंगे ही. So that makes me okay, चलो चिट्टी रोबोट तो नहीं, कम से कम कुछ तो बन रहा है. Anyone, Avinash, Aniket? Should I start? Hello, Yeah, I'm audible. yeah, you can. If you're So yeah, so I joined. You can tell me as COVID batch because when we joined, COVID came. So we were like first year people say we connect with people and all. So that didn't happen to us. And I think 1.5 years went like that only in COVID. After that, I think in second year, fourth sem, we came to college. Then we started exploring, okay, what electronics is and all. And I think for me, it was not that helpful just because I chose some other field. I tried electronics, but it didn't excited me that much. So I chose data science because math was like one of the thing I used to like. So I chose data science. So yeah, of course, my expectations didn't match. Yeah, that's all from my side. I guess I'll go. मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि यार मैंने जेई मेंस के टाइम या गुड सेट देने के टाइम से ही डिसाइड कर लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पढ़ना है. मुझे आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में डीप डाइव ये करियर कहाँ लेके जाता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है. बहुत ही नाइव स्टूडेंट, जस्ट लाइक एनी अदर ब्राउन किड. घर में रिलेटिव का बच्चा अगर ये कर रहा है, वो कहीं अच्छा जगह पहुंच गया है, इफ दे आर अर्निंग गुड, देन वी ऑल्सो शुड ट्राई दैट. तो मेरी जर्नी वैसी ही रही कि 10th के बाद ही मतलब मुझे पता था कि एटलीस्ट आई वोंट गो टूवर्ड्स दिस सॉफ्टवेयर फील्ड. बट अपने कजिन्स को देख के उनसे मोटिवेशन लेके मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स परस्यू करने का डिसाइड किया. And after completing 4 years in electronics and communication and now doing my master's in that field only, I can say yeah, course wise I would say expectations didn't match, but yeah, अगर वो कोर्स ना पढ़ा होता तो आज इस फील्ड के बारे में या फिर फ्यूचर क्या है वो चीज़ और अच्छे से समझ नहीं पाता. So I would say yeah,
understanding is very important of the course actually. सेम अविनाश, मेरा भी वैसा ही था। सेकंड स्टैंडर्ड से लाइक मेरे पास कंप्यूटर था, तो फिक्स था कि जाना तो कंप्यूटर में ही है। एंड मिल गया। पहले मुझे आईटी मिला था जीईसी में ही, आफ्टर दैट थर्ड राउंड में सी मिल गया था। बट हाँ, कोई लोगों को वो क्वेश्चन हो सकता है कि भाई एमबीए ना हो, तो मैं एमबीए जो कर रहा हूँ वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो लाइक मेरा 90% ऑफ सिलेबस इज टेक प्लस बिजनेस। बाकी सब चीजें लाइक रेगुलर एमबीए से हम 70 to 80% टेक ही पढ़ते हैं। तो दैट्स द मेन थिंग कि टेक में ही जाना था, टेक में ही मिल गया और आगे टेक में ही सब करना है, तो जा रहा है अभी तो। I think I'll go next. So मैं जब से छोटी थी तब से ये अपन नहीं देखते हैं कि कोई नेबर का वाईफाई हैक कर लिया या फिर मतलब ऐसे मूवीज में देखते हैं कि भाई इसने तो किसी कोई ऐसा बड़ा नासा का कुछ ऐसा हैक वैक कर लिया। तब से आई हैड इंटरेस्ट इन कंप्यूटर ओनली की। एंड तभी से फिक्स ही था क्योंकि मुझे पर्सनली कोडिंग करना या फिर ऐसा कुछ ऐसा बनाना जैसे कि हम ऐसे ब्यूटीफुल वेबसाइट्स देखते हैं या फिर कोई ऐसी अच्छी चीज़ें देखते हैं, वो पहले से मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसमें। एंड पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है सीई ब्रांच को लेके कि मेरा एक्सपेक्टेशंस तो मीट हुआ ही है इसमें। कि लाइक मैंने जब भी अपना इंटर्नशिप किया था सेकेंड ईयर के अंदर, तभी आई वॉज बिल्डिंग एन वेबसाइट और वेब पेज वॉट एवर यू से। सो उसके अंदर वी हैव टू राइट अ कोर्स somehow कि it is speed efficient, it is time efficient, it is cost effective, and you have to also manage कि you are testing and जिसकी वजह से टेस्टिंग का भी वो कम हो। एंड आपको ऐसा कोड लिखना है जिससे कि आपके बाद अगर कोई आके वही चीज़ देख रहा है पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि वॉट यू हैव वर्कड ऑन, वॉट यू हैव लर्न, और क्यों पर्टिकुलर चीज़ ऐसी ही है। सो दिस इज़ द नॉलेज वी हैव टू गेन, एंड उसी चीज़ का तुमको अपने फील्ड में यूज़ करना है, जिससे अपना पूरा इंटेलिजेंस दिखाना है, अपना पूरा 100% दिखाना है, जिससे कि तुम एज अ बेस्ट कोड लेके आ सको। एंड दैट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग टू मी। एंड मुझे तो लगता है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जैसे कि डीएसए किया है या फिर हम कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखते हैं और उसमें इफेक्टिवली कोड लिखना सीखता है, कमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन हम अच्छे से करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न सो फार, एंड आई गेस आई लव कंप्यूटर इंजीनियरिंग द मोस्ट। Thank you, Bhargavi, everyone. Any other inputs related to question asked you want to give, if any? So So next, no other inputs. I have one question for the speakers. First of all, guys, ये scripted नहीं है, उनके लिए भी जितना सरप्राइज होगा अभी मैं पूछूंगा उनके लिए भी सरप्राइज ही है। जो स्क्रिप्ट तो रेडी भेजी थी वैसे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, लाइन टू लाइन। so अच्छा the thing is, एंटरटेनमेंट हमारे लिए भी होना चाहिए ना। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। so the thing is कि सब अभी अभी कहीं किसी ने ट्रांजिशन करा है फील्ड्स में और कहीं कुछ एमटेक कर रहा है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, एमबीए कर रहा है। एंड देन सो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी आप जिस फील्ड में हो, सो लाइक सारे स्पीकर्स के क्वेश्चन है। एंड लाइक व्हाट डू यू फील की ड्रॉबैक्स क्या है उस चीज के, आई मीन इन फील्ड में और अपॉर्चुनिटी वाइज। लेट्स से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी है या फिर क्या उस चीज में है, तो लोगों को क्लैरिटी हो कि हाँ ऐसा ऐसा चीज है, ड्रॉबैक्स, प्रोज एंड कॉन्स आर देयर। सो परम, Should डू I यू वांट start? टू स्टार्ट? या श्योर। Yeah, okay, Param, go ahead. Param, go ahead. I'll say 3 words only. As per my experience और जो भी like मैं बोल रहा हूँ, एंड पार्डन मी मेरे बैकग्राउंड में अगर कुछ म्यूजिक की आवाज आ रही है तो, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी गणपति आगमन है, तो हाँ हाँ हर हाँ। जगह से म्यूजिक है। मैंने घर में पूरा देखा बट सब जगह आवाज आ रही है, तो आई कैन नॉट लाइक मूव एनीवेयर जहाँ पे ना है। कमिंग टू द क्वेश्चन, 3 words: AI, डेटा साइंस एंड रोबोटिक्स, लाइक ऑटोमेशन। 3 वर्ड में लाइक पूरा ट्रेंड आ जाता है अभी, एज पर माई नॉलेज और एक्सपीरियंस जो भी है। यस अनिकेत। भार्गव, हाँ, अनिकेत। Yeah. So
I am working as a data scientist only. So yeah, it's one of the biggest buzzword I think because I know what I am doing and I know what people think AI is. So maybe it's like a bubble. But the suggestion I would like to give everyone is don't think what AI is what you see. It's completely maths only. It's very boring. It's very boring. I think it's been 4 years for me. I am in the field of data science, and for me, still, I just study maths only. There is nothing extra than maths. It's linear algebra, it's statistics. There is nothing like interesting like LLMs and all. It's math. So डेटा साइंस परस्यू करना है तो ये सोचना मत कि वाह बढ़िया है एजेंट्स बनाएंगे ये बनाएंगे वो सब ऊपर से ही है इफ यू वांट टू बी इन द टॉप 1% तो मैथ्स इज द ओनली थिंग बाकी यस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड I agree with Aniket and Param. So मैंने भी यहाँ पे जितना देखा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेंड इज एआई और सब लोग एआई मतलब जितना कंप्यूटर साइंस सोचते हैं उतना प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे होता है एमएल और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड टर्म ऑफ कोर्स रोबोटिक्स जहाँ पे प्रिसीजन चाहिए होता है वहाँ पे मैनुअल लेबर्स को हटा रहे हैं और रोबोटिक्स रख रहे हैं एंड थर्ड इज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स इट्स एब्सोल्युटली राइट बट ड्रॉबैक्स आ जाए तो एआई से एक ड्रॉबैक है जो इंडस्ट्रियल वर्जन में देख रहे हैं लाइक अभी हमारा कंपनी है हम एआई को सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि एआई से हम अपना डेटा लीकेज कर सकते हैं so there might be a chance of data leakage or something and that's it from AI and coming to robotics initial investment is the thing क्योंकि जो इनिशियली इन्वेस्ट जो हम करना होता है वो ज़्यादा होता है और डेटा साइंस आई एम नॉट श्योर बट कॉम्प्लेक्सिटी में भी एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि रोबोटिक्स और एआई दोनों में इंडिया इज वेरी बिहाइंड in both cases because one of my friend is also working in field of robotics and they are doing what other countries have already done it 10 years 15 years before and they are doing it now same with AI there is nothing that foundation model means what we call LLMs इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है अभी चैट जीपीटी हो गया क्लाउड हो गया परप्लेक्सिटी हो गया इंडिया के लिए ऐसा कुछ खुद का एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंडिया बहुत पीछे है इन सब चीजों में टू बी फ्रैंक इंडिया सारी चीजों में पीछे ही चल रहा है But let's just hope कि I would like to add a point here. At least India semiconductor field में बहुत हाथ पैर मार रहा है कैसे भी करके अप टू द मार्क पहुंचने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए विद इन लास्ट 2-3 years एंड रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट होने में टाइम तो लगेगा बिकॉज और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिससे हमारे डेली लाइफ जो भी अप्लायंसेस है वो कम हो जाएगा उसका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा अब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे फोन्स और कोई बाहर कंट्री के फोन्स वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर का प्ले होता है और मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन जितना यहाँ पे होता है सेमीकंडक्टर फील्ड में उतना मैंने तो कहीं ऑब्जर्व नहीं किया उतना हाँ रोबोटिक्स भी अभी जैसे बोला है अभी इंडिया सभी में पीछे ही है अग्री और रोबोटिक्स की तो बात ही मत करो अभी अभी बस निकल रहे हैं हाथ पैर निकल रहे हैं लेट्स जस्ट होप कि जूनियर्स कुछ नया इनोवेशन और कुछ हटके कर दे इंडिया में है लाइक एलएलएम्स भी इंडिया के हैं बट हमें पता नहीं होता क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज से ही होते हैं कहाँ पे जाना है फेंग में जाना है दैट्स द मेन मोटिव किसी को स्विच में नहीं जाना राइट बाकी एलएलएम्स वगैरह बहुत सारी चीजें है बट लाइक अप टू द मार्क नहीं है वो लोग हमारे से लाइक 10 साल आगे उन लोगों ने ट्रिलियंस ऑफ कल ही मैंने देखा 1500 बिलियन प्लस पैरामीटर चैट जीपीटी ने ऑलरेडी उसका मॉडल बना दिया हम में भी अभी बिलियन पे भी नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम है बाकी अवेलेबल सब कुछ है बट छोटा छोटा है तो वो एक दिक्कत है कि डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि सब तो सुन ही रहे हैं कि VLSI का बूम है सेमीकंडक्टर में फोकस करो चिप्स डिजाइन करो तो आई वुड से इट्स नॉट रॉन्ग या ये कोई फॉल्स न्यूज़ नहीं है तुम्हारे हाथ में मोबाइल है तुम जिस लैपटॉप से अभी ज्वाइन किए हो ये और स्लीकियर बन पा रहा है ये और फास्ट बन पा रहा है उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि सेमीकंडक्टर और चिप डिज़ाइन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है और नए डिज़ाइंस बन रहे हैं
एंड राइट नाउ हमें 5G है, वी आर यूजिंग 5G, एंड जिस टाइप से रिसर्च स्पीड चल रही है, not in India but in the whole world, we are expecting that by 2027 5G will be completely phased out, and at the beginning of 2028 we will be having 6G. स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि यार अभी और 4G अभी थोड़ा टाइम पहले आया था, 5G अभी आ गया, अभी 6G आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम मूवीज ही ज़्यादा फास्ट डाउनलोड करोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो यार अभी तुम लोग को तो मूवीज ही डाउनलोड करनी है. Agreed, बट agreed. कॉलेज का इंटरनेट से नहीं कर सकते. But on that note, we fast forwarded to 6G, and so we have to take a next question. So मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग को ऐसा क्वेश्चन होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आए, सेकंड ईयर में आए, उनको ऐसा कि शायद उन्होंने गलत ब्रांच ले ली, या फिर ब्रांच ले ली तो फिर उनको ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को ये ब्रांच में नहीं जाना, मेरे को कोई और ब्रांच में जाना है, या फिर उसी ब्रांच में कोई और, मतलब जैसे ईसी में एज ए एग्जांपल उसमें वीएलएसआई एम्बेडेड है, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि मेरे को वीएलएसआई में जाना है, एम्बेडेड में जाना है. वैसे स्टूडेंट्स को बहुत क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और उनको कैसे पता चलेगा उनको कौन सी चीज में, कौन सी फील्ड में, जैसे प्रॉपर स्पेशलाइज्ड फील्ड में वो कौन सी चूज करेंगे? देखो, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है. इफ यू हैव ऑप्शन की पहला साल इसी में कर लिया, सेकंड सी में जाऊंगा, थर्ड में बीएम में जाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो अब जो आ गए उसका ही यूज करो. हमें पता ही है कि इसी के 60% 70% स्टूडेंट विल बी गो CIT के फील्ड में, ठीक है, और मैकेनिकल वाले भी आते हैं, सब आते हैं. एंड हाँ, एंड यस, सो ऐसा कुछ है नहीं कि इसी फील्ड में अच्छा है. मैंने तो वो भी लाइक सुना है कि लोग फिर सी में आने के लिए इसी में एडमिशन ले लेते एंड देन फिर सेकंड ईयर से सी फिर से करने लगते. लाइक ऐसा होता है कि एडमिशन दूसरी ब्रांच में ले लिया, काम दूसरी ब्रांच का करते, जस्ट एग्जाम पास करने के लिए, GTU करने के लिए वो करते. बट डोंट डू दैट. अभी आप एमटेक या MBA भी कुछ आगे करेंगे, फर्दर स्टडीज, MSB, डोंट गो विद द फ्लो. फ्रेंड्स वगैरह तो बोलेंगे, करेंगे, एंड मेन चीज पैसे के पीछे मत भागना. तुम्हें जो अच्छा लगे वो देखो. पैसे सब में है. इवन मुझे कई लोग बोलते हैं कि 20 लाख का पैकेज चाहिए, किसमें स्कोप है, राइट? तो स्कोप सब में है. कोई ऐसा भी होगा गूगल में बैठा होगा जो HTML पे कोडिंग कर रहा होगा, फिर भी 50 लाख का पैकेज होगा उसका. तो ऐसा नहीं है कि AI में स्कोप है, HTML में नहीं. आप that's the main thing, and I would love to hear from the other speakers उसके perspective क्या है इस पे. I agree with you, Param. Like even in my college, there are some scenarios. बंदे सिविल ज्वाइन हो जाते हैं and end of the day they want to join in TCS or some reputed software companies. Like their motto is to get a job with a good package. So my suggestion from core side, there is nothing such type thing. मतलब तुम सॉफ्टवेयर में जाओगे तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. So even if you continue in core में ग्रेजुअल मतलब आराम से कब ऊपर की तरफ जाता है. इट्स नॉट लाइक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में अगर नया सॉफ्टवेयर आ गया, नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, दोबारा हमें स्टार्टिंग से करना होता है. बट कोर ऐसा नहीं होता. आपको इनिशियली कम मिलता होगा पैकेज, बट जितना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना आप मशीन्स को जानोगे, आपको उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उतना अच्छा पे मिलेगा. सो पे के हिसाब से देखें तो सब कुछ सेम ही होता है. एट द एंड ऑफ द डे सबको वहीं पे आके रुकना होता है, एक मार्जिन पे. सो एंड कमिंग टू फील्ड, अगर तुम ले रहे हो रोबोटिक्स या फिर CSC, अब जैसे बताया था अविनाश जी ने कि लाइक यू कैन गो विद, इफ यू आर गोइंग विद EC, थोड़े लोग जाते हैं एम्बेडेड पे, थोड़े लोग जाते हैं VLSI पे, थोड़े लोग जाते हैं VLSI में भी फिजिकल डिजाइनिंग. तुम अपना जो फील्ड लिए रखा है, अब मैंने रोबोटिक्स लिया है तो मैं रोबोट प्रोग्रामिंग ही करना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग विद सम न्यू टेक्नोलॉजी और इंस्टेड ऑफ गोइंग विद कंप्यूटर साइंस. तो सब में भी स्कोप है. इवन इफ यू गो विथ लाइक दैट, आपको मिलेगा. जॉब की टेंशन अभी उतनी तो जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, एज यू आर स्टिल परस्यूइंग ग्रेजुएशन.
एंड अब रोबोटिक्स में आपको फील्ड्स होंगे, मशीन लर्निंग भी रोबोटिक्स में आता है, एम्बेडेड भी आता है, हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा टच होता है. सो इट्स अप टू यू विच वन यू वांट टू गो. मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा लाइक डोंट गो विथ आई वांट टू डू दिस रोबोटिक्स एंटायर, यू कांट डू दैट. You need to go either with some mobile robots, you need to go with either with UAVs or drones, you need to go with some industrial robots, everything is different. तो इन दिस ग्रेजुएशन तुम्हारा जो 4 साल का होता है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया इसका मतलब ये होता है कि यू शुड सेलेक्ट वन स्पेशल डोमेन. मतलब तुमने रोबोटिक्स लिया, रोबोटिक्स में भी स्पेशल डोमेन लो, उसमें भी तुम अपना स्पेशल डोमेन लो, और तुम जो लास्ट स्पेशल डोमेन लोगे उस पर तुम्हें नौकरी लगेगी. तो यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू रोबोटिक्स. So in this way, actually things work here. So एक Yeah. क्वेश्चन है मुझे स्पीकर से कि if you are to pick like one branch which you are not right now, so what you will pick? That not yours. I would go first here. I would go first. I would have taken mechatronics without a second doubt. Like as I said, I was not too rigid to take electronics and communication only before joining GEC Gandhinagar or appearing for JEE Mains. I had interest in robotics as well as machine learning, as well as how these things work or behave internally, how these things interact, and from my own searching skills or whatever you say, like Googling things. If you can say like 4 to 5 years ago, there was no chat GPT or it was not very hand to hand. So I had to use Google only and to be up to date with all this tech stuff. And at that time, I got to know about this branch as mechatronics. It's a combined form of whatever branch you name it. You have to learn that thing for mechatronics. It has coding skills. You have to design some boards over there. You have to design FPGA circuits also. You have to integrate them. You have to embed your just for juniors, you can say Arduino or any other microcontroller board that runs this kind of any device. That is, so mechatronics I would have chosen, if not EC. Bhargav? So if not robotics, yeah, I mean, वैसे तो there is a difference between mechatronics and robotics. I would definitely go with that. But instead of it, I want to go with automobile. क्योंकि अभी एक और नया टाइप ऑफ आया है, हमें ई व्हीकल्स आ गए, तो वो बहुत अच्छा स्कोप है. And voice of cars. तो अच्छा बता, अच्छा. सॉरी, हाँ नहीं वो गलती से अच्छा माइक ऑन रह गया था. ओके. तो लाइक हाँ, अच्छा टाइम पास हो जाता है अगर मोबाइल कुछ ऐसा लोगे ऑटोमोबाइल्स कुछ. आई विल गो विथ ऑटोमोबाइल. So if EC not तो पक्का डेटा साइंस और नो क्वेश्चन. बट ऑनेस्टली एक चीज ये बोलूंगा कि देखो, कॉलेज में आने से पहले टू बी ऑनेस्ट किसी को नहीं पता रहता. बच्चे इतने वो नहीं रहते. JEE या फिर गुडसेट के टाइम पे इट्स लाइक अ जनरलाइज वे ऑफ स्टडी. सब पढ़ रहा है आदमी, उसे ये नहीं पता रहता. तो इन कॉलेज फर्स्ट ईयर ओनली ही मेक्स डिसीजन कि विच ब्रांच आई हैव टू चूज. बट एक सजेशन ये रहेगा कि तुम कोई भी ब्रांच चूज करो, जस्ट बी हैव अ ओपन माइंड की ओके I will try every other branch. I will try to understand every other branch. Then only you will be able to make a decision, okay, whether electronics, whether biomedical, computer science. Understood? So बस यही है कि open रहना, thoughts open रखना कि okay सब try करेंगे. कि I am working in data science, but I am working in material science industry, which is like cement, steel, all these things. So ये किसी ने सुना भी नहीं होगा, but ये है ब्रांच बहुत बड़ी. इंडिया मैक्सिमम जीडीपी का रेवेन्यू इंडिया का इसी से आता है. ऑल द बिग इंडस्ट्रीज आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट ओनली. तो बस ये कि ओपन रहो, सब चीजें ट्राई करो. और सेकेंड थिंग इज सराउंडिंग अच्छा रखो, लोग अच्छे रखो, स्टे कनेक्टेड विद सीनियर्स. और
आई थिंक फॉर मी चूजिंग डेटा साइंस, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आई यूज्ड टू स्टे इन पीजी, नॉट इन हॉस्टल. सो लकीली जो ट्रिपल आईटी वडोदरा के मास्टर स्टूडेंट्स थे वो लकीली मेरे साथ रहते थे एंड दे वर डूइंग मास्टर्स इन डेटा साइंस. सो आई थिंक फॉर मी सराउंडिंग मैटर्ड अ लॉट. उनसे सीखा, उनसे जाना, चीजें समझी. तो बस सीनियर से कनेक्टेड रहो. आई थिंक दे कैन गाइड यू द बेस्ट बिकॉज दे विल ट्राई टू गाइड यू दैट जो मिस्टेक्स उन्होंने किया है वो तुम ना करो. बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Next, Param and Bhargav. Bhargav, you can go because मेरा तो CE था और मैं वही कर रहा हूँ. I don't have it different. Yeah, actually, in my introduction only, I was telling that CE ने तो मुझे दिया ही है जो मुझे चाहिए था. Actually, मेरे expectations तो meet हुए हैं. So I guess मेरा जब as in starting से ही passion ही इसमें था, तो I don't think कि इसके अलावा मैंने और कुछ pursue किया होता, क्योंकि I am happy with my branch actually. To spice things up, Yeah. वंश तू क्या चूज करता? Okay guys, I am I have loyal to add to one DC. point. Yes, मेरे को yes. एक पॉइंट ऐड करना था कि सीई, आई एग्री, इट्स अ गुड ब्रांच, मैं उसी में काम कर रहा हूँ. बट आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक इज द बेस्ट ब्रांच. Wait, Aniket, wait. We'll do this in the last part of the workshop. We'll turn off the servers. We'll stop designing efficient chips. नहीं, I am loyal to DC. I will मेरे choose नाम DC रहेगा. only. Otherwise लाइट भी चली जाएंगी. Mid disconnect. So like, we already discussed this point, but I want to point out this question कि like आजकल सारी फील्ड ओवरलैप कर दी है, like AI in IT, chips in EC, sensors हो गया, VM पे, robotics planning, everything needs that सभी ब्रांच के इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहता है. तो we have talked, but does it even matter कि division of branch? Any one of the speaker can just explain, then we can move on to next question. ओके, सो क्या मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग ब्रांच मतलब होना भी चाहिए कि नहीं, राइट? ऐसा कुछ I am saying कि almost It's some every overlap, field, overlap. yes, कहीं ना कहीं every field are overlapping on each other. कहीं ना कहीं सी का काम भी आ जाता है, EC का आ जाता है, AI is everywhere right now, फिर रोबोटिक्स हो गया. तो लाइक ब्रांच डज इट मैटर कि डिवाइड करना, चूज करना हो गया? It does देखो, matter actually. अगर सॉरी अनिकेत सर, मैं पहले इनिशिएट कर दे. बट सबने वो कहावत सुने कि साथ ही हाथ गाना सुना हो, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना. तो एक कम्युनिटी, एक सेक्शन में तुम इंजीनियर्स जब बनते हो तो उसके पास एक ही पर्टिकुलर अगर सेट ऑफ स्किल्स का, ही इज मास्टर ऑफ दैट. जैसे तुमने बोला कि बहुत सारे स्किल्स ओवरलैप करती है, बट कोई एक पर्सन सारी स्किल्स का मास्टर नहीं हो सकता. तो जस्ट फॉर हैविंग अ मास्टर ऑफ दैट फील्ड, देयर इज, ये जरूरी है कि डाइवर्सिफाइड ऑफ ब्रांच इज नीडेड. कि अगर जस्ट से कि अगर मैं एज एन ईसी इंजीनियर मैं कोड लिख सकता हूँ, बट कैन आई राइट as efficient code as Param or Bhargavi? No, I can't. Can they have can Param or Bhargavi has that kind of logic for building architecture or system as I have, the kind of skills that I have right now? They will learn at some point, they will excel, but तब तक तो मैं भी और सीख जाऊंगा ना. सेम एज दूसरे ब्रांच का भी है कि वो अपने अपनी ब्रांच में सब एक्सेल करेंगे, और अपने साथ ही, जैसे कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स होते हैं, तो मोस्टली अगर कोई हॉस्टल में है, पीजी में, तो बहुत ही कम चांसेस है कि उसका रूममेट उसके ब्रांच का ही हो. तो हॉस्टल एलोकेशन में अगर तुमने ये सब सिस्टम जब तुम समझो, तो ये इसलिए होता है ताकि तुम दूसरे ब्रांच को समझो, उसकी टेक्निकलिटीज भी समझो, वो कहाँ ड्रॉप बैक कर रहा है, उसके कहाँ कौन से, तुम उसको कैसे रेलेवेंस में ला सकते हो, या तुम उस गैप को कैसे फील कर सकते हो विथ योर नॉलेज. दैट्स व्हाई डाइवर्सिफाइड ऑफ ब्रांच इज नीडेड.
Aniket, you were Okay. saying. Yeah, sorry. Okay. So see, uh, बीटेक लिया, ओके, इट्स आई एग्री, बट टू बी ऑनेस्ट जस्ट बैचलर से आप ये डिसीजन नहीं बना सकते कि तुम्हें कौन सी ब्रांच में जाना है, बिकॉज मुझे लगता है बैचलर्स, एक कंप्यूटर साइंस को अगर हटा दो, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो तो फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल का भी कुछ सब्जेक्ट्स है, तो आई थिंक अगर तुम्हें, मतलब तुम खाली ये डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हें कौन सी ब्रांच अच्छी लगती है, पर तुम्हें रियली उस ब्रांच में इंटरेस्ट है, वो तुम्हें आफ्टर कॉलेज एक्सपीरियंस लेके या फिर उसमें मास्टर्स करके, पीएचडी करके, पोस्ट डॉक करके पता चलेगा। सो आई तो या तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अदर ब्रांच डिवीजन मैटर करता है कि नहीं। तो देखो, लेट्स टेक एनी एग्जांपल, कोई भी, जस्ट टेक एनवीडिया ओनली। आई थिंक एनवीडिया सबको पता होगा आज के टाइम में। सो इट्स नॉट जस्ट अ हार्डवेयर कंपनी और अ सॉफ्टवेयर कंपनी और एक्स वाई जेड, वो सब करती है। अगर वो जीपीयू बना रही है तो जीपीयू जिस सॉफ्टवेयर पे चलता है उसका नाम कूडा है, वो भी उन्होंने ही बनाया है। तो दे आर हार्डवेयर प्लस दे आर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सो आई थिंक या जो अविनाश बोल रहा था कि सपोर्ट मैटर करता है फ्रॉम जीरो टू, मतलब ए टू जेड अगर जाना है तो मल्टीपल ब्रांचेस आर इन्वॉल्व। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अलग अलग ब्रांच नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। बस ये है कि टाइम दो, समझो, यही है मतलब। आई एग्री विद अंकित पॉइंट, लाइक अभी तुम जब बीटेक करके बाहर आते हो अपना इंजीनियरिंग करके, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी. So you are eligible for that, not for a particular like engineer. You're not a computer science engineer, you're not a mechanical engineer, you're just a graduate engineer trainee. So you know the things well, that's it. And उसके बाद ही रियल जितनी स्टार्ट होता है, जहाँ पे तुम देखते हो which zone suits for me, किसमें मेरे को थोड़ा कम स्ट्रेस मिलता है, तो you go with that. एंड कमिंग टू, अभी बताया था कि हॉस्टल डिवीजन भी ऐसे ही होता है. सो आई शेयर्ड माय रूम विद अ केमिकल गाय. सो एटलीस्ट मेरे को समझ आया कि इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं, एक एक जगह पे एक एक. दैट्स द रीजन डाइवर्सिफाइंग ब्रांच शुड बी डन, और होना भी चाहिए. जैसे भी बताया था कि करना तो मैं भी कर लूंगा कोडिंग, पर हाँ, मैं भार्गवी जितना, मतलब वो कंप्यूटर साइंस करके उतने जितना प्रोफिशिएंट तो नहीं करूंगा, और जब तक उतना मैं सीखूंगा तब तक टाइम ही निकल जाएगा. So there should be something. Move on to the next question. ये like this is like core थोड़ा सा इसी related है, like बाकी branches के लिए भी है. Like India is pursuing into semiconductors, healthcare, AI, robotics हो गया, startup. Like which branch do you stand to benefit the most? Like कौन सी opportunities you see? Do I am audible? Yes, you are audible. Once can you repeat again? I'm saying like India is pushing into semiconductors, healthcare, AI, robotics, and startups. So like which branch stands to benefit the most? I would say कि which are the opportunities everyone should are there right now? Can I start? Like according, like I am also in a currently I am also working in same semiconductor industries, and as per my idea, या सबका इक्वली चलता है. अब तुम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि तुम पूरा VLSI कर रहे हो. VLSI बनाने के लिए भी हमें हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर मशीनरीज चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें दोबारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स सबका चलता है. सो आई वुड सजेस्ट, जितना अब जब AI इतना एफिशिएंट हो गया है, तो एनी ब्रांच विच आर कोर इंजीनियरिंग, लाइक कोर को तो इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते. सो I would suggest like any branch within core engineering will be a good sign for you. Just wanted to add something कि ऐसा मत सोचो ब्रांच ली है आगे क्या करना है, फील्ड क्या है. जस्ट अपनी जो फील्ड है उसमें ट्रेंड्स, जो भी लोग पूछ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उनको पकड़ो, उनको मास्टर करने की ट्राई करो. प्लस जो भी नया आ रहा है, नया क्या आ रहा है, एक तो AI सबको पता ही है,
बट एआई कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है, वो सब चीजें भी देखो, क्योंकि तुम्हें कल सुबह जाके जब कंपनी में पूछेंगे ये सब चीजें तो आनी चाहिए, एंड तुम्हें उस पे ही काम करना है। एंड ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इसी से हूं तो मेरे को एआई नहीं आना चाहिए, क्योंकि एआई इज नॉट जस्ट लाइक चैट जीपीटी और जेमिनी में तुम जो कर रहे हो, इट्स नॉट एआई। वो 5% ही है पूरे वर्ल्ड की एआई का, ठीक है। तो सिर्फ कुछ डाल दिया प्रॉम्प्ट और आंसर दे दिया, वो एआई नहीं है। एआई इसी में भी काम कर सकता है, लाइक सी में भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीजें, आपका इवन ईमेल, जो ईमेल स्पैम में जाता है या आपके इनबॉक्स में डालना है, इट्स एमएल और एआई, जो भी आप बोलो। सेम सर्किट्स में भी होता है। अभी नेटवर्क्स में भी यू कैन सी कि एयरटेल ने नया इनिशिएटिव लिया है कि फ्रॉड कॉल्स तुम्हें आने ही नहीं देंगे, मोबाइल तक ही नहीं पहुंचने देंगे। 5G अगर सिम आप यूज कर रहे हो एयरटेल का, तो इवन मुझे तो वहां तक पता है कि एयरटेल एंड जियो ने कोलैबोरेशन का भी बोला था वीआई के साथ, रिसेंट 1-2 महीने की बात है, जिसमें उन लोगों ने पूरी डायरेक्टरी बनाई है कि कौन सा कॉल फ्रॉड है, कौन सा नहीं है। तो ये सब चीजें हर एक फील्ड में आएगी। मैकेनिक्स में भी कोई, ऑटोमोबाइल में भी आ सकता है, हर एक चीज में एआई एमएल तो आएगा। ऐसी ट्रेंड्स, ऐसी चीजें पकड़ो जो लाइक आपको एक्स्ट्रा एज दे जीटीयू के सिलेबस के ऊपर थोड़ा, क्योंकि जीटीयू का सिलेबस 5 साल पुराना है एंड ऑलरेडी हम 5 साल आगे टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं, तो 10 साल का गैप यू हैव टू फिल दैट। एंड आई वांटेड टू ऐड वन थिंग कि अभी मोस्टली मैंने ये भी काफ़ी देखा है कि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ट्रेंड्स के पीछे बहुत वो करते हैं कि अगर मैं अपनी सी ब्रांच की हूँ तो सी ब्रांच में क्या ट्रेंड चल रहा है मेरे को वहीं फॉलो करना है, तो एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता है। अभी जैसे कि अपन बात करें इसके अलावा कि जैसे अगर इसके बारे में शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली स्टार्ट किया था कि वो लोग सिलिकॉन इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे वो ट्रेंड में चल रहा था या फिर ऐसा, लेकिन वो लोग भी 50 LPA 1 करोड़ के पैकेजेस निकाल रहे थे। सो इट्स नॉट अबाउट इट ओनली कि तुम बस अपना स्किल सेट पे फोकस करना चाहिए कि क्या करना है। इवन जबकि एक और एग्जांपल, जैसे कि अभी लास्ट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन अमेजोन, सो वहाँ पे आई मेट वन गाय एंड व्हाट ही डिड, उसने सिर्फ अपना ऐसे बैचलर्स ही पूरा किया था जो कि Tier 3 कॉलेज से था, लेकिन उसके पास एक स्किल थी कि उसको जर्मनी बोलना बहुत अच्छे से आता था। सो वो वहाँ पे जस्ट एज अ ट्रांसलेशन का काम कर रहा था कि जो जर्मनी जाता है फिर वहाँ से इंडिया आता है और मतलब मस्त पूरा अपना वो करता है, और उसका पैकेज वाज रियली गुड। सो मतलब ऐसा है कि मतलब ट्रेंड्स के पीछे मत ही भागो, मतलब जस्ट फॉलो योर पैशन, मैं तो यही बोलूंगी। ट्रेंड पता होना चाहिए बट Duolingo stonks go up after Bhargavi's comment. Let's move on to next question कि देखो ब्रांच और फील्ड रिलेटेड स्किल्स तो सबको पता चल जाएगा, कोई कहीं से ढूंढ लेगा, बट सम स्किल्स आर नीडेड, सॉफ्ट स्किल्स विच दे आर नॉट एबल टू फाइंड, कि जैसे स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, तो वो सारी स्किल्स है उसके जैसे, तो वो सब बताओ कि कोई भी स्पीकर स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट विद अविनाश। या सॉफ्ट स्किल्स में तो सबसे पहले मैं एक चीज को पॉइंट करना चाहूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? व्हेन यू हैव नॉलेज, फर्स्ट ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप को एक नॉलेजेबल पर्सन बनाओगे तो तुम किसी से बात करने में तुम्हें कोई झिझक नहीं होगी, तुम अटकोगे नहीं। उसमें तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर आता नहीं है, ठीक है। पहले तो मेरे को एक ये भी लगता है कि एक स्टीरियोटाइप है कि नहीं, अगर हम फ्लुएंट इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो हम अच्छे पैकेजेस नहीं ले सकते, या फिर हमारी इस न्यू एज जनरेशन में कोई कैसे हम compete करेंगे। ऐसा नहीं है, तुम हिंदी, दूसरी लैंग्वेजेस या रीजनल लैंग्वेजेस में भी कम्युनिकेट कर सकते हो अप टू सम एक्सटेंट, बट तुम्हारे पास वो नॉलेज होना चाहिए, तुम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने चाहिए कैसे भी। बाकी लैंग्वेज तो यार अगर
कोई फॉरेन काउंटर पार्ट है जिसको तुम्हारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है कंप्लीटली, तो फिर दोनों को कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढना ही पड़ेगा फॉर जस्ट कम्युनिकेटिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, फिर स्पीक बोलने के लिए जैसे कि कम फॉरवर्ड, लाइक डोंट पुश योर सेल्फ बैकवर्ड्स कि अरे लाइक अभी थर्ड और सेकंड ईयर में भी सबको सब्जेक्ट्स होते हैं ईटीसी और कुछ ऐसे जिसमें तुमको प्रेजेंटेशंस देने होते हैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स के सामने आके 5 मिनट 10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देना होता है, एंड आई गेस ये सारे ब्रांचेस में होता है। एंड आई हैव सीन पीपल टेकिंग देयर स्टेप बैक फ्रॉम दैट सेशन, ना वो दूसरे की बातें सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, बोलते हैं कि अरे चलो अच्छा है आज मेरे को 2 घंटे का फ्री टाइम मिल गया है, जाके मस्त दाल चावल खाऊंगा सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, वो तो- ये खाने पीने का नहीं करेंगे, वो लोग गेम खेलेंगे, लेट्स प्ले सम गेम्स, और वहां जाते हैं। हाँ, पर वहीं पे वो चीज लैग करती है। तुम खुद जाओ, तुम खुद अपनी पॉइंट्स समझाओ, तुम किसी और की बात सुनो, कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन, तो डेफिनेटली बाकी जितने भी तुम सॉफ्ट स्किल्स बोल लो, एडेप्टेबिलिटी बोल लो, सारी चीज वो बाय प्रोडक्ट है इसी चीज के कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। And guys, particular for the tools- yes, Param, you can continue. just wanted to Avinash point ki तुम लाइक जो भी कर रहे हो अच्छा करो, 100% अपना दो। तुम में मान लो कोई भी एक टॉपिक भी पकड़ ले, उसमें भी कॉन्फिडेंस है, देन यू विल बी एबल टू स्पीक। और ये चीज मैंने देखी है स्पेशली इन जेईसी कि लोग कॉलेज ही नहीं जाते, तो फर्स्ट थिंग कि कॉलेज जाओ एंड कुछ एक्टिविटीज करो पहले। अरे ये तो दुखती नस पे लेगेसी है। कर ली। हाँ, सी मेरे 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 पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि तुम कॉलेज भी नहीं जा रहे हो तो भी अच्छा कर सकते हो, और मैं एग्जाम्पल ही मैं ही हूँ। लाइक मेरा जब फर्स्ट सेम खत्म हुआ 6 मंथ्स, एंड सेकंड सेम में मीड आने वाली थी, जस्ट 1 वीक पहले ही कोरोना आ गया। तो मैंने 4th ईयर तक सब कोरोना में ही घर पे ही किया, ठीक है। बट घर पे बैठ के ऐसा नहीं कि चलो अब घर का ही माहौल हम कर रहे। हमारा ग्रुप भी अच्छा था कि हम ग्रुप लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में भी कनेक्टेड थे, ठीक है। बट क्लब जो भी आप देख रहे हो, क्लब आईडी, GDSC प्लस, ई सेल, अब क्लब आइबर, तो ये सब चीजें लाइक 3 क्लब जो बने हैं फर्स्ट, वो मैंने ऑनलाइन ही बनाया है। मतलब ऑनलाइन ही HOD से मैसेज करके, फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करके। तो ऐसा नहीं है कि तुम कॉलेज पे नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, कॉलेज पे नहीं हो फिर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट यू जस्ट हैव टू बी, जैसे अविनाश ने बोला, आईज, ईयर्स एंड माइंड, तीनों चीज ओपन रखनी है, प्रोएक्टिव रहो। एंड टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, अच्छा एटीट्यूड, एंड इंजीनियर्स के लिए एक दूसरा पेन पॉइंट की गुड हाइजीन। लोग लाइक इंजीनियरिंग में आते हैं तो वो बाबा साधु जैसे बन जाते हैं कि भाई अब तो क्या ही इतना है, कॉलेज में आ गए तो लाइक मूवीज में देख देख के। बट अच्छा हाइजीन भी मेंटेन करो, एंड थोड़ा प्रोफेसर्स वगैरह साथ भी बहुत एक अच्छे रिलेशनशिप बनाओ, बहुत काम आते हैं, मुझे अभी तक आते हैं। तो यू कैन ट्राई दैट। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे लॉन्ड्री लिस्ट की इतना ही फॉलो करना। यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट थिंग्स, you'll find कि हमें क्या अच्छा लगता है। बाकी ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग सी में आ गए तो कोड ही करेंगे, कोई सिंगर भी बन जाता है। तो अपनी स्किल्स जो पर्सनल स्किल्स है वो भी थोड़ा डेवलप करने की ट्राई करो। दैट्स इट। And next question, moving on to, I want Aniket to answer this. Like, do you think students choose branches like based on placement stats हो गया rather than actual interest? Like practical रहना चाहिए या फिर interest को follow करना चाहिए? See, I am asking you this कि आपका transition हुआ है field में, so that's why. Okay, so I will start. So first year join किया college में, तो I was clear कि I will explore as much things as I can, and then only I will make a decision. So first year I tried EC. Okay, things are not working out with me, and I was not having senior guidance because, as per I'm told, seniors were at home because of COVID.
So no guidance for me. So where I was staying, I'm telling the seniors, GCK seniors थे, they were computer science plus masters के seniors from Triple N. They were also computer science. तो उन्होंने आई थिंक आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ब्रेन वॉश बट उन्होंने गाइड किया कि यार लेट्स ट्राई सी कंप्यूटर साइंस. ट्राई किया, कोडिंग किया, सी लैंग्वेज, C++, जावा भी ट्राई किया, सब ट्राई किया, फिर पाइथन ट्राई किया. फिर उसके बाद कहीं आई थिंक सेकेंड ईयर एंड या थर्ड ईयर स्टार्टिंग में मुझे किसी ने बताया कि डेटा साइंस यू शुड ट्राई. और उस टाइम पे देर वॉज नथिंग बूम इन डेटा साइंस. और आई थिंक 3 साल पहले तक बिफोर चैट जीपीटी डेटा साइंस वाज लाइक नॉर्मल ब्रांच लाइक अदर ब्रांच. बट आफ्टर चैट जीपीटी केम पीपल आर लाइक मैड दैट दे वांट डेटा साइंस, दे वांट एआई, एवरीथिंग. सो उस टाइम पे जब मैंने डेटा साइंस स्टार्ट किया तो मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा था कि यार VLSI इज अ गुड ब्रांच. बिकॉज जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया तो मैं सोचा था इंटेल, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन ये सब नाम सुन के मैं आ गया था कि भाई ऐसी कंपनीज में जाना है मुझे. और तो यस ऑफ कोर्स कि पैशन तो नहीं कह सकता. मेरे लिए ऐसा था कि भाई देखो पैशन तुम्हें कोई आके बता थोड़ी रहा है ऊपर से कि भाई तुम्हारा पैशन ये है. वो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ता है. तो इसी तो भले मैंने ज्वाइन किया बट आई ट्राइड एवरीथिंग. इवन आई हैव ट्राइड वेब डेवलपमेंट, इवन DSA जो भार्गव इज आई थिंक सी इज एक्सपर्ट इन, बिकॉज मैंने उनका लिंक्डइन वगैरह देखा तो आई थिंक सी एक्सपर्ट इन DSA, तो वो भी ट्राई किया है. तो बस ये. और पता है कॉलेज स्टूडेंट जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मैं एक्सप्लोर करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा लाइफ में. दैट इज नॉट करेक्ट. सब एक्सप्लोर करना ही है. बिकॉज यू नो व्हाट पीपल थिंक, ये बस मतलब मिथ हो गया है कि ये कॉलेज छोड़ा 20 लाख का पैकेज चाहिए. ऐसा नहीं होता है. सो आई एम वर्किंग इन IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. इट इज द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड. और वो खुद स्टार्टअप्स भी रन करते हैं, मल्टीपल स्टार्टअप्स दे रन, एंड आई एम वर्किंग इन वन ऑफ स्टार्टअप्स. सो हियर आई वर्क विद PhDs. They are still earning 40-45,000 and their age is 28-29, but they are happy because they are following their passion. So ये तो मिथ है. ये सब IITs NITs का मिथ है कि यार कॉलेज छोड़ा 50 लाख का पैकेज चाहिए, 1 करोड़ का पैकेज चाहिए. अच्छे AIRs तुम्हें कभी ये नहीं दिखेंगे कि उन्हें कुछ एक्सेप्शनल किया है. कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ओके AIR 1 है वो कोई बहुत अलग कर रहा है कुछ, या फिर बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है. बस वही स्टैंड करेगा इंडस्ट्री में आखिर में जो कंटिन्यूसली चीजें सीख रहा है इवन आफ्टर 10 years 15 years. Let's take an example of Arvind Srinivas. मतलब I think everyone must be knowing him. He is the founder of Perplexity. So IIT Madras से भले पढ़ा है, not कि बहुत अच्छी रैंक थी, but हाँ IIT Madras is a good college. But still he tried doing masters, PhD, postdoc, multiple internships. If you see his career path, Perplexity join करने से पहले 10 to 15 years he has given to industry. People just see big startups. They don't see the efforts behind them. People who are doing great jobs, getting paid in millions, billions, they have given years, 10 years, 15 years, 20 years. So just accept कि टाइम लगेगा. 1 साल, 2 साल, 3 साल में कुछ नहीं होगा. 5-10 साल का खेल है. इवन एंड स्पेसिफिकली अगर डेटा साइंस में कोई आना चाहता है तो भाई इट्स द वर्ल्ड सबसे बोरिंग जॉब है. जो चीज जितना तुम्हें पे कर रही ना उतनी बोरिंग भी होती है. तो ये सब तो बस दिखता है बाहर से कि वाह इसने AI बनाया है, उसने वो बनाया. जब तुम एक्चुअल मैथ समझने जाओगे ना तुम रो पड़ोगे भाई. हियर आई एम वर्किंग, आई हैव टू एटलीस्ट रीड 2 to 3 रिसर्च पेपर्स वीकली. और रिसर्च पेपर पढ़ना इज वन ऑफ द बोरिंग टास्क. मतलब कौन करता है यार आज के टाइम में. बट चैट जीपीटी कभी हेल्प नहीं करने वाला. और इंडिया का नाम पता है क्यों इतना है. इंडिया इज बिगेस्ट मार्केट ऑफ कंज्यूमर्स. वी जस्ट कंज्यूम थिंग्स, वी डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग. सो ये चीज समझो कि कोई तारीफ कर रहा है, सैम अल्टमैन इंडिया की बहुत तारीफ करता है, परप्लेक्सिटी इंडिया की बहुत तारीफ करता है, पर हम ये नहीं समझते किस कंटेक्स्ट में तारीफ कर रहे हैं. वी आर गुड कंज्यूमर्स. एयरटेल ने परप्लेक्सिटी के साथ कोलैब किया, फ्री परप्लेक्सिटी मिल रहा है, लोग समझ नहीं रहे कि उनको डेटा कलेक्ट करना है. इंडिया वाले क्या है, कोई अभी कुछ बीच में कोई गिबली आर्ट करके कुछ आया था आई थिंक चैट जीपीटी पे. जस्ट लाइक फूल्स वी आर अपलोडिंग फोटोज एंड मेकिंग गिबली आर्ट्स. People are not understanding that they are being used there. वो consumer बन रहे. They made good So data AI out makes, there. yeah. So there is a term called there is a term मतलब it's a thing that quote कह सकते. If you are getting something for free, then you are the product. So And समझ you are जाओ. the need. So just open your mind. चीजों के साथ खुलो और टाइम दो भाई, टाइम लगेगा. It's been 4 years for me. I have done nothing.
And today I'm capable enough that I take interview of people for hiring. So I see AI सुन के अच्छा रिज्यूमे बना के सब आ जाते हैं, पर व्हेन वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस लाइक स्टैटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया या फिर लीनियर अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, दे आर नॉट एबल टू आंसर. सो बस ये कि भाई टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा. और अगर कुछ किसी अपने जो ज्वाइंट हुए लोग उनको कुछ हो तो या दे कैन कनेक्ट मी ऑन मेल और लिंक्डइन, आई कैन गाइड देम मोर इन डेटा साइंस. और प्लीज इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच. जो मैंने किया है वो सबको करने की जरूरत नहीं है भाई. मेरे फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है दे आर अर्निंग 2 times मोर देन मी. आई कैन गिव एग्जांपल आल्सो. सो या बट वो स्किल्स पे डिपेंड करता है, ऐसा मत सोच लेना कि कॉलेज yeah, के this is what is the thing. Yeah, that I agree. That skill matters at the end. वो नहीं मैटर करेगा तुम कहाँ से पढ़े हो, तुम कितने अच्छे हो उस चीज में, वही मैटर करने वाला है. एंड आई एग्री दैट इंडस्ट्री में गुड इंजीनियर्स की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है. हमें लग रहा है कि बहुत मार्केट टफ है, जॉब मिलना टफ है. इफ यू आर गुड एट समथिंग नो पीपल विल फाइट फॉर यू. दैट आई टोटली एग्री. या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. पैसे मिल जाते हैं. मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था, हमारा एवरेज 5 LP अराउंड था. लोगों को पूछो तो कुछ लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको 10+ चाहिए. अब मैं जब ऐसे लोगों को मिलता हूँ ना, भी जूनियर्स को भी, वो पूछते हैं कि 10 या 15 का मिल जाएगा. नहीं, आई वुड से आई विल गिव यू 1 करोड़ का पैकेज, ठीक है, बट मैं तुम्हें बोलूंगा वो तुम्हें आता है कि नहीं. दैट्स द मेन थिंग. तो ऐसा नहीं है कि पैसे ऐसे ही मिल जाते हैं. 7-8 राउंड, जब अगर आप एक्सपीरियंस चाहो तो भार्गवी से पूछ सकते हो कि अमेजोन में जाने के लिए सिर्फ इंटर्नशिप के लिए कितने राउंड और क्या लगा था, ठीक है. इवन कंपनी उडू आती है, उडू 4 क्वेश्चन देती है, 2 सोल्व होते हैं, 2 नहीं होते. क्यों? क्योंकि आपको नहीं आते. वो तो आते ही ये पैकेज अच्छा देने के लिए, बट आपको नहीं आता. दैट्स द मेन थिंग. एंड वही सीखना है, करना है. बाकी ऐसा मत सोच लेना कि कॉलेज के बाद जस्ट डिग्री आ गई तो इतना मिल ही जाएगा. नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि स्किल्स मैटर्स. एंड अगर वेरियस फील्ड्स के लिए अगर आपको चाहिए कि क्या क्या जरूरी है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. जैसे अनिकेत ने बोला, जिस फील्ड में जाना हो, मेंटर्स एंड लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि इंडस्ट्री में तो वन थिंग दैट विल वर्क फॉर यू द मोस्ट इज नेटवर्किंग. Nothing comes about networking. The good network you have, the better you will do in your life. Bas. Thank you. Even we are fortunate, like we have a platform for networking, LinkedIn. Like तुम जितना अभी जैसे बताया था कि अच्छा तुम्हें 1 crore चाहिए, तो उसके हिसाब से तुम अपना स्किल प्रूव करो. You have a platform where you can demonstrate things. तो उसके हिसाब से वही आपको अप्रोच हो सकते हैं. So I suggest अभी जो भी फ्रेशर्स हो, जो भी ज्वाइन हो रहे हो, मतलब अभी जो अभी ग्रेजुएशन में हो, मेक देयर लिंक्डइन द बेस्ट. क्योंकि आजकल के टाइम में जितना भी हमारे यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, लिंक्डइन को भी कंसिडर करते हैं. Right. Like how your network is and how you are connecting, how you are speaking, having with conversation with people. So everything makes sense there. Also मुझे 1 महीने पहले पता चला कि मेरा एक फ्रेंड है जर्मनी में तुम्हें स्टोर में जॉब चाहिए ना, फिर भी वो आपका लिंक्डइन देखते हैं. नॉट जस्ट लिंक्डइन, आपके रिकमेंडेशन देखते हैं कि किसने रिकमेंड किया और क्या रिकमेंड किया. तो एवरीथिंग मैटर्स. जो आपके सोशल प्रोफाइल पे है वो सब चीजें. एंड अच्छी बनाओ प्रोफाइल. हमें तो पहले पता चल गया था, बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हो. इवन क्लब फाइबर ने एक सेशन भी किया था लिंक्डइन प्लस प्रोफाइल बिल्डिंग पे. कुछ ऐसी चीजों में यू हैव टू बी एक्टिव. लाइक ये बात भी मैं एग्री करता हूँ. हाँ, लिंक्डइन, अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं अपना जो भी वर्क है करता रहता हूँ, कंटिन्यूस एक्टिव रहता हूँ लिंक्डइन में. सो आई गॉट अराउंड 5000 फॉलोअर्स और कनेक्शंस. एंड नाउ लाइक अब मेरे को ही उल्टा वही अप्रोच हो रहा है जैसे तुमने बताया, जैसे आइबर ने अप्रोच किया. मतलब दे आर having their questions with me and they are trying to get the answers. थोड़े तो ऑफर्स आते हैं via LinkedIn, HR से में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं. इवन
मेरे को ये सजेशन मेरे सीनियर ने दिया था जब मैं ज्वाइन होने से पहले, तुम्हारे पास जो लिंक्डइन है हर दिन उसको ओपन करो, जो भी एचआर जो भी कंपनी तुम्हें पसंद आए उस कंपनी के एचआर को बस मैसेज करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो देखेगा नहीं, दैट्स फाइन, अगर ना देखा चलेगा, तुमने 100 रखे उसमें से एक भी आ गया तो एटलीस्ट तुम तो थोड़ा शॉर्ट हो रहे हो। तो मतलब मेरा बैकग्राउंड आके मेरा जो कॉलेज था वो टायर 2 था, तो हमें तो लिंक्डइन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, लाइक मेरे लिंक्डइन से थोड़े हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशंस मिले और लिंक्डइन से ही हमारे फ्रेंड्स को जॉब मिले, इवन आई टू गेट गुड रिकमेंडेशंस फ्रॉम लिंक्डइन, जिससे मेरे को भी बहुत सारे अप्रोचेस है कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप आगे। मैं इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्यों तुम्हें ऐसे सारे इवेंट्स या ऐसे सारे सेशंस अटेंड करने चाहिए। मुझे याद है जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो मैंने परम रादड़िया परम भाई जो है उन्होंने एक लिंक्डइन सेशन लिया था कॉलेज में, मैंने वो तब अटेंड किया था। देन आई गॉट टू नो कि लिंक्डइन करके भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें इंस्टाग्राम से ज्यादा स्क्रॉल करना चाहिए। एंड फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं अपना लिंक्डइन बनाया। पहला प्रोफाइल बहुत ही गंदा ही होता है क्योंकि तुम्हारे पास ना सर्टिफिकेशंस होते हैं, ना तुम्हें पता रहता है कि तुम्हारा अबाउट कैसा होना चाहिए, तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन वहाँ डालनी है, कैसे प्रोफाइल अच्छी बनानी है। पर द थिंग आई नो इज जितना जल्दी कोई भी चीज शुरू करोगे उतना बेटर वो टाइम टू टाइम होते जाएगा। अगर तुम्हें 4th ईयर में अपना लिंक्डइन अपना रेज्यूम सबसे बेस्ट या अपने क्लास में सबसे बेस्ट चाहिए तो तुम्हें आज ही वो स्टेप लेना पड़ेगा और आज ही जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे पास आज तुम फर्स्ट ईयर में हो और तुम्हारे पास आज ही इंटर्नशिप के ढेर सारे एक्सपीरियंस है, 2 to 3 एक्सपीरियंसेस है या बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है। क्योंकि मैंने अपने क्लासमेट्स और कुछ जूनियर से सुना है कि जब मैं उनको बोलता था, क्योंकि उन्होंने परम भाई का वो सेशन अटेंड नहीं किया था तो उनको नहीं पता था कि हाँ लिंक्डइन करके भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ जो उनको यूज करना चाहिए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर नॉलेज। क्योंकि मैं अभी कमेंट सेक्शन भी देख सकता हूँ, वहाँ पे कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे अगर पर्टिकुलरली ये फील्ड में ये इसमें नॉलेज चाहिए तो कैसे मिलेगा। हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 स्पीकर्स ही हैं। हमें जितना नॉलेज होगा वो अगर तुम अपने लिंक्डइन से सेम फील्ड के 20 लोग को रीच आउट करो, क्या वो हमसे बेटर आंसर देंगे कि नहीं? तुम वैसे रेलेवेंट प्रोफेसर जिनका इंटरेस्ट वैसा है तुम उनको पूछो तो वो बेटर आंसर्स और करेक्ट पाथ तुम्हें बताएंगे कि नहीं। तो इसलिए ऐसे सारे सेशंस अटेंड करने चाहिए और लिंक्डइन पे एक्टिव होना चाहिए। जस्ट ट्राई करना कि उस प्लेटफॉर्म को इंस्टाग्राम ना बना दो कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। नहीं, रेलेवेंट कनेक्शंस होने चाहिए। Even I have Avinash, I have a funny thing to add. So even मेरे को मतलब मेरे जो दोस्त था, he used to text girls in the LinkedIn, मतलब वो अपने एक्स का डिटेल्स उसको हर जगह ब्लॉक किया, वो बंदा लिंक्डइन में मैसेज कर रहा है, उसके कनेक्शंस को मैसेज कर रहा है कि कैन यू शेयर योर नंबर टू मी। उतना तो every platform is a Tinder if you are lover enough. Let's move on to the next question. जैसे कि सबको पता ही है कि अभी इंडिया फुल फोकस कर रहा है सेमीकंडक्टर में जाने का, फुल एकदम कि मतलब ऐसे प्रॉपर एक फैक्ट्री डालने का ऐसे 10,000 करोड़ 60,000 करोड़ डालने वाला है। बट ऐसा है कि अब इसे एक नेक्स्ट बिग थिंग बन जाएगा जो अभी सी और आईटी था लास्ट डेकेड में। जैसे अभी हम सी आईटी इंजीनियर्स पंप आउट कर रहे थे, अब पीसी इंजीनियर्स पंप आउट करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा मतलब एक कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा कि जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरफ था वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की तरफ होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दैट्स वाई जहाँ जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे वो एक ही चीज़ पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं कि स्किल्स, कि जो चीज़ तुम्हें स्किलफुल लगती है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है वो लो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ईसी में से स्टूडेंट स्विच करते हैं टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डोमेन।
कंप्यूटर पढ़ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना करियर इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में बनाते हैं. दैट व्हाट आई एम सेइंग इज सेमीकंडक्टर कंपनीज में. लाइक अगर जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ प्रेजेंट हैं वो अगर अच्छे से इवन अपने सी सीनियर्स को भी रीच आउट करें, अच्छे से सर्च करें लिंक्डइन पे, तो वो देख सकते हैं कि 2 to 3 years बैक भी जो सीनियर्स पास आउट हुए वो अब कुछ कुछ सेमीकंडक्टर कंपनी की तरफ शिफ्ट किए हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सीनियर्स. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फर्मवेयर कोडिंग बहुत अच्छा किया, उनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से आता था, जिसके साथ साथ उन्होंने लेटर ऑन अपने डिजिटल सिस्टम डिजाइन पे वर्क ऑन किया. ऐसे सब जब तुम स्किल्स, तुमने जो ब्रांच पढ़ी उसके साथ अगर तुम रेलेवेंट स्किल्स पे भी फोकस करते हो, देन यू कैन मेक गुड करियर. और जैसे अभी कृष्ण ने ये सवाल पूछा कि सेमीकंडक्टर की तरफ फिर क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चले जाएंगे, तो या प्रेफरेंस मिलेगा. क्यों? क्योंकि दे हैव अ बैकग्राउंड विद सम ऑफ दोज रेलेवेंट कोर्सेज. कि जो सब्जेक्ट्स एक आरए रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन स्टूडेंट को पढ़ने में और टाइम लगेगा, उसको हॉर्न करने में और टाइम लगेगा, कंप्यूटर स्टूडेंट्स को टाइम लगेगा, तो वो नॉट एट द वेरी बेस्ट लेवल बट एटलीस्ट ग्राउंड लेवल नॉलेज तो एक इसी स्टूडेंट्स को होगा. दैट्स व्हाई दे विल गेट प्रीफर्ड, बट नॉट एज इन कि नहीं भाई अगर किसी सेमीकंडक्टर कंपनी में 100 वैकेंसी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी स्टूडेंट्स को ही लूंगा. नहीं, जब वो वैकेंसी निकालते हैं तो वो स्किलफुल स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करते हैं. तो वो बाद में अगर उसने दूसरे ब्रांच से भी किया होगा बट अगर उसको वेरीलॉग और उसको सिस्टम डिजाइन अच्छे से आता है तो कोई दूसरे ब्रांच का भी बंदा ले लेगा. नेक्स्ट फरहान भैया, आप चालू. सी ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा पूरा, क्योंकि द पीपल हु आर वर्किंग ऑन ईसी, मान लो आप प्रोग्रामिंग, मेरा एक फ्रेंड लास्ट वीकेंड आया था तो उसका मैंने वो देखा कैसे सर्किट डिजाइन करते हैं वो कैडेंस में, तो पूरा जो सैमसंग के लिए चिप्स वगैरह बनाते तो कैसे बनाते हैं. बट आई हैव सीन दैट. मैंने उसको पूछा कि आपका यूएसपी क्या है, तो यूएसपी उसने बोला सेस, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो उसका सॉफ्टवेयर ही मेन लाइक वो लोग सेल करते हैं टू गिव अदर कंपनीज टू बिल्ड समथिंग. ठीक है, तो वो कौन बनाता है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर ही बनाएंगे, वो ही प्रोग्राम करेंगे. तो एवरीवन विल गो हैंड टू हैंड. ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसको एज मिल गई. आपको लगेगा कि इसकी ज्यादा डिमांड बढ़ रही, इसकी कम हो रही, जस्ट बिकॉज आप उस एनवायरनमेंट में हो. अगर आप आईटी कंपनी में हो तो आपको पता होगा कि आईटी में ज्यादा लाइक ये आ रहा है वो आ रहा है. इसी में होंगे तो जैसे अविनाश ने बोला कि ऐसी चीजें आ रही है, तो आप जो एनवायरनमेंट में होंगे वही आपको पता होगा. बट दूसरे इंडस्ट्री में क्या हो रहा होगा इतना आपको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा. इफ यू थिंक कि लाइक शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट का आपको इंडस्ट्री में ही पता होगा इतना. बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कुछ आ जाएगा और नेक्स्ट डे के पता लग जाएगा कि चलो जो इसी इंजीनियर है वही रहेंगे, बाकी सबको कुछ और करना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. जैसे मैकेनिकल सिविल पहले हुआ था, 10-15 साल अगर आप पीछे देखो तो ऐसे होता आ रहा है कि कुछ इंजीनियर्स की डिमांड होती है बट पूरा वो वेनिश नहीं हो जाता. I just wanted to add one thing कि कुछ लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी पूछ रहे, तो डीएसए का भी पूछ रहे. तो इफ भार्गवी कैन आंसर दैट क्वेश्चन इन बिटवीन इफ यू आर नॉट लाइक नेक्स्ट आउट ऑफ टाइम. दूसरे स्पीकर अनिकेत. Hello. Yes. Am I audible? Yes. Yeah. Okay. So I think see, if you see the history, so there is nothing like कि यार ये vanish हो गया या वो vanish हो गया. It's just कि demand goes up and down, and nothing will vanish. तो मैं वही same चीज repeat करना चाहूँगा कि focus on your skills, be a quality engineer, not a like क्या बोलते हैं, don't run in rat race. अपना खुद का path बनाओ और अच्छे से उसमें सीखो, and your demand will last forever. बस यही मेरा सजेशन है. नेक्स्ट भार्गवी.
यस एक्चुअली मेरे को ये कंफर्म करना था कि क्वेश्चन मतलब जो डीएसए के ये जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है ना। यस मैं ऐसा बोला कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे दो आप। अच्छा तो ओके तो कैन यू So रिपीट द क्वेश्चन वन। क्वेश्चन I asked was कि अभी इंडिया फुल सेमीकंडक्टर से फोकस कर रहा है, तो मतलब अभी जैसे लास्ट डेकेड सभी सीआईटी इंजीनियर्स पंप आउट हुए, तो अब इस साल ईसी इंजीनियर्स पंप आउट चालू होंगे ऐसा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जैसे कि अभी कंप्यूटर का इतना है कि बहुत टाइम से चल ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता है, बट कुछ चीज़ें होती है जो कभी मतलब इतनी जल्दी वैनिश नहीं हो जाती है। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे ही ज़्यादा बूम आया है कंप्यूटर इंजीनियर्स का और इन सब का, सो आई डोंट थिंक सो वो इतनी जल्दी तो वैनिश हो गई। और जैसे कि बात है कि ईसी इंजीनियर्स की और सबकी, सो हाँ मतलब उसका बूम हो ही रहा है, जो जबकि मेरे को तो पर्सनली लगता है कि हो ही रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था कि सिलिकॉन इंजीनियर्स और उसका भी अभी रिसेंटली काफ़ी नए जॉब्स भी हैं, सो या। नेक्स्ट भार्गव। सो हाँ आई वुड से मैं वही बोलूंगा जैसे लाइक लास्ट टाइम आई सेड, अब जो वीएलएस है या फिर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बूम हो रहा है, सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थोड़ी ना आएगा, उसका एक फ्रेमवर्क होता है। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट। उस फ्रेमवर्क के लिए यू नीड मैकेनिकल गाइज, यू नीड इलेक्ट्रॉनिक्स गाइज, यू नीड कंप्यूटर साइंस गाइज। सो ऐसा नहीं है कि बस सेमीकंडक्टर बूम कर रहे हो तो सिर्फ सेमीकंडक्टर जाएगा, हाँ बट एक स्टेप ज्यादा हो सकता है, बट यू विल द मेजर कोर ऑफ फ्रेमवर्क जो होगा, तो यू विल गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज देयर, इट्स नथिंग लाइक दैट। ओके सो नाउ मैं सारे स्पीकर्स का अटेंशन यहाँ पे चाहूंगा कि नाउ लेट्स have some rage bit, something controversy, bunch. Let's have some WWE type shit here. क्लब आइबर है, वहाँ कंट्रोवर्सी तो होनी है। Controversy तो होगी। We have created a section called Rage Quit Reality. So like we'll throw some spicy question, controversial है, sugar quitting नहीं करने वाले हैं, तो it's gonna be some fun for everyone. So like first question है कि इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी वाले हम थोड़े, तो ये क्लासिक वन है कि इसी ग्रेजुएट जो होते हैं ऑफन एंड्स अप इन आईटी सॉफ्टवेयर। तो लाइक इसी कोई बैकडोर है कोडिंग में जाने के लिए, या फिर जस्ट ऐसे ही कि सीएस या आईटी के लिए रैंकिंग नहीं है, ईसी ले लेता हूँ फिर बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा? ओके सो देखो मैं ऐड करता हूँ क्योंकि मैं दोनों चीजों में रहा हूँ। सो टू बी ऑनेस्ट नथिंग इज बैड और नथिंग इज गुड। द थिंग इज कि जो सीएस में हम करते हैं वो विजुअली अपीलिंग होता है, वो हमें अच्छा लगता है देखने में, और एज ए ह्यूमन हमें एक चीज अट्रैक्ट करती है। और ईसी में ये होता है, तो ये एक ही चीज है जो डिफरेंशिएट करती है ईसी वाले बच्चों को आईटी में जाने के लिए, कि थिंग्स वी सी इट मेक्स अस फील गुड, ओके यार वी आर क्रिएटिंग समथिंग एंड वी कैन सी इट। ईसी में दैट थिंग्स लैग। सो आई थिंक बस वो एक रीजन है, और देयर इज नथिंग लाइक की बैकडोर एंड ऑल। या बोरिंग चीजें किसी को पसंद नहीं आई है तो किसी को पसंद नहीं आएगी, बट दोस आर द वंस व्हिच आर एक्चुअली हेल्पफुल इन लॉन्ग रन। तो बस वही है कि दैट इज अ मिथ कि ईसी इज अ बैकडोर। मैं इसमें ऐड करूंगा, बोरिंग लगता है तो इसलिए कि मैं इसी पे ऐसे ऐड करूंगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था वी हैड अ सब्जेक्ट एज पीपीएस, ठीक है? तो उसमें जस्ट आफ्टर राइटिंग हेलो वर्ल्ड कोड फॉर द फर्स्ट टाइम और एक बेसिक अरिथमेटिक कोड लिख के, ठीक है, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया था कि मम्मी देखो मैं जादू कर सकता हूँ कोड लिख के 2+3 एंड आई एम नॉट किडिंग, ठीक है? मैं लेजिट अपने फैमिली को ये दिखाया हूँ कि मम्मी देखो आप कोई भी नंबर बोलोगे मैं कुछ नहीं करूंगा, कंप्यूटर अपने आप उसका एडिशन करके देगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना अच्छा कोड लिख चुका हूँ अब फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है? जस्ट 2 to 3 months आई हैव जॉइंड कॉलेज एंड आई कैन टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू ऐसा। बट ऐसा नहीं होता है। मैंने तो अगर तुम मेरी जर्नी देखोगे तो मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में कंप्लीट कोडिंग बैकग्राउंड ऑप्ट किया था। मैं हैकाथॉन में पार्ट लिया, मैंने स्टेट हैकाथॉन जीता भी है, बट देन मुझे खुद को समझ आ गया कि ये मेरा फोर्टे नहीं हो सकता है।
मतलब मैं कोई अच्छा कोड नहीं लिख सकता, मेरा लॉजिकल दिमाग उतना अच्छा कोड कभी लिख ही नहीं सकता जितना एज कम्पेयर टू भार्गवी या परम, इनके जितना नहीं लिख सकता, या फिर अनिकेत जितना भी मैं उतना लॉजिकली या शार्प माइंड नहीं हो सकता, ठीक है। बट देन मैंने दूसरा फील्ड भी ट्राई किया जो अब ई सेल है कॉलेज में, तो मैंने उसके बेस पे आगे बढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप भी ट्राई की, जिसमें आईआईटी बॉम्बे लेवल रीच तक भी मैंने किया। बट वो भी मुझे कुछ ही 6 to 7 मंथ से पता चलेगा कि नहीं भाई, अभी इतनी जल्दी बिजनेस तो नहीं करना पड़ेगा भाई, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। थर्ड ईयर आते आते मैं एम्बेडेड में थोड़ा सीरियस हुआ, मैंने वो ट्राई किया, मैंने उसमें स्किल्स एक्वायर करने के लिए ट्राई किया, अपने सीनियर्स को रीच आउट किया, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी जैसे मुझे हेल्प किया, तो फिर मैं एक हैकाथॉन था जिसमें टॉप 25 आया था ऑल ओवर इंडिया उस प्रोजेक्ट को लेके। देन आई गॉट टू नो कि ठीक है, मैं इसी डिपार्टमेंट या इसी फील्ड को ही ज्यादा सीरियसली लूँ तो मेरे लिए ज्यादा बेटर, नॉट एज कि मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ और अब फोर्थ ईयर में तो मेरा पास आउट हो जाएगा। बट मुझे वहाँ अपना इंटरेस्ट पता चल गया था, मैंने वहाँ गेट अटेम्प्ट किया, मैंने फिर सोचा कि अब मुझे जब जेन्युइनली इंटरेस्ट आ गया है तो इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। मैं जैसे अविनाश का था, मेरा भी कुछ ऐसा ही चक्कर था। मैंने प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड में मैंने खुद का एक कैलकुलेटर बनाया जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकता है। वह बंदा बैठ गया, अच्छा अब मेरे को 50 लाख से 60 LPA पैकेज आएगा। जब मेरा एंट्री हुआ डेटा स्ट्रक्चर, तब मैंने हाथ जोड़ दिया, ना भाई ये मेरे से नहीं होगा। फिर मैं बदला, इसी अच्छा देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एलईडी ब्लिंकिंग कर लिया, हाँ काफी है। एलईडी ब्लिंकिंग कर लिया तो सोचा कल रोबोट बन जाएगा। फिर समझ आया अच्छा अभी तो और झेलना है। फिर गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं सब टच करके आया, इसलिए शायद से मैं मैकेट्रॉनिक इंजीनियर बना आज। और कमिंग तो हमारे साइड भी एक मिथ होता है, अगर आप यहाँ पे आप साउथ इंडिया रीजन में ज्यादातर मोस्टली तेलुगु स्टेट्स में अगर आप पूछोगे आपके बेटे को क्या पढ़ा रहे हो, तो बोलेंगे विल गो विथ ईसी। क्यों ईसी? उन्हें कुछ पता नहीं है कि एनालॉग होता है, डिजिटल, उन्हें ये नहीं पता। ईसी एक ऐसी चीज है जिसपे तुम हार्डवेयर जा सकते हो, सॉफ्टवेयर जा सकते हो। अगर तुम्हारे बेटे का कुछ बोलते हैं ना जात कम, या फिर कुछ बोलते हैं जो ज्योतिष तुम्हारा अगर ठीक नहीं है, उसकी कुंडली ठीक नहीं है, तो उसका सॉफ्टवेयर ना मिले तो हार्डवेयर तो मिल जाएगा। सो यहाँ के लोग ज्यादातर इसी ऐसे जानते हैं, लाइक हैविंग अ बैकअप ऑफ हार्डवेयर विद अ सॉफ्टवेयर टीम। बट हाँ, थोड़ा अलग होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अलग होता है। मोस्टली तुम एक असेंबली लैंग्वेज लिखते हो और ईसी और सीएससी में शायद से सेम होता है लॉजिक। तुम ईसी प्रोग्रामिंग में जो लॉजिक यूज करते हो शायद से वो तुम कंप्यूटर साइंस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो दैट कैन बी अ थिंग, पर हाँ बैकडोर जितना तो नहीं होता। So next question for Bhargav only. RA is mix of mechanical, EC and CS. Does it really deserve to be a separate branch? या फिर just mesh up है वो? या माय सजेशन होना चाहिए एक्चुअली। मतलब पीपल लाइक मी हु इज वेरी मच एंथुसियास्टिक इन ऑल फील्ड, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स करने का मन करता है, ट्रिपल ई करने का मन करता है, कंप्यूटर साइंस करने। सो दोज हु वांट टू गो विथ वन थिंग, तो आई वुड सजेस्ट अभी आरए रहे हो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तुम सब बैकग्राउंड सीख रहे हो, कंप्यूटर साइंस सीख रहे हो, ईसी सीख रहे हो, तो एटलीस्ट तुम अपना एक जोन ढूंढ सकते हो। और कमिंग टू इसको सेपरेट ब्रांच से अच्छा है हम इसको मैकेट्रॉनिक्स में इंक्लूड कर सके। So we already have a branch called mechatronic engineer, जहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, तुम उस पे कंप्यूटर साइंस ऐड कर दो और ये रोबोटिक्स बन जाए। Okay, so now let's move on to the CIT branches. Do IT engineers get treated as CS light, less theory or more coding? So I guess I'll go here. So actually my cousin brother is in information technology and I am in computer engineering. So if you, let's see it as a perspective wise,
सो इफ यू आर अ फैमिली मेंबर तो वो लोग मेरे को अपर ब्रांच कंसिडर करते हैं, उसको लोअर ब्रांच, बट दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली, बट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई डिग्रेडेड ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियर का, ऐसे नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब नया बना था तभी इट वाज मोर ऑन लाइक कि कुछ सब्जेक्ट्स उसके डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरे कजन से मेरे सब्जेक्ट कंपेयर करूं तो हमारे काफ़ी सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और काफ़ी जो मतलब डिफरेंस होता है, लेकिन अल्टीमेटली द थिंग इज कि हम ओवरऑल सेम चीज़ ही पढ़ रहे हैं। सो इफ हम लोग प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं या तो फिर हम कोई भी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर कौन से रोल हम लेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है। सो इसीलिए दैट इज अ स्टीरियोटाइप और समथिंग कि हाँ दोनों को अलग रखने का जरूरत नहीं है, बट जब आई गेस या उसका खुद का ऐसा डिफरेंस है सी और आईटी का थोड़ा थोड़ा। मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड आईटी, आई वुड जस्ट से आई डोंट नो, क्योंकि कुछ प्लेसमेंट में तो साथ में बैठना है। Vansh, you can ask the next question. Next question is same for CSIT guys. कि coding bootcamps होते हैं like कि just कुछ months 6 months की coding bootcamps होते हैं. Then why we need 4-year program, degree program? कि just कि placement के लिए एक ticket है कि क्या है? शादी की टिकट है, नॉट जस्ट प्लेस। हाँ, ये इवन मेरे एमबीए में भी कुछ लोग हैं जो 25 लाख लाइक यहाँ पे इन्वेस्ट करे जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक अच्छी वाइफ मिले या अच्छा हस्बैंड मिले, क्योंकि लाइक अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि 2 डिग्री तो चाहिए या इसमें तो आपका फैमिली बिजनेस है तो रन करना ही है, तो दैट ऑल्सो मैटर्स। I think guys, family matters. So join club as a family. Okay, so I will add one point. भले मैं न्यू ब्रांच है बट आई नो कि क्यों कॉलेज है, क्यों 4 साल का। सो देखो सी दिखता है कि यार कोडिंग है, पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, बट बहुत सारी चीजें है सी का। आई थिंक 1 2 सब्जेक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें जो कॉलेज में सिखाते हैं, और इन सब चीजों में हमें उतना ही एफर्ट्स और उतना ही इम्पोर्टेंस देना होता है जितना हम कोडिंग को दे रहे होते हैं, क्योंकि एट द एंड जब तुम गुड अच्छी जगह जाओगे लाइफ में, अच्छी जगह, अच्छी कंपनी या अच्छी प्लेस जहाँ पे ब्रिलियंट माइंड्स काम कर रहे हैं, सो दे वैल्यू दिस सब्जेक्ट्स दैट मच ओनली। आई थिंक यू विल सी दैट some brilliant person will respect operating system and computer networks more than coding. I have seen this. तो या कॉलेज जरूरी है। कॉलेज सिर्फ ऐसा नहीं कि सी के लिए चाहिए या फिर बस की कोडिंग के लिए चाहिए। कम्युनिकेशन होता है, फ्रेंड बनते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, चीजें टाइम लगता है। तो आई थिंक 4 years इज आई थिंक एक्चुअली दे आर लेस। कॉलेज तो 6-7 साल का होना चाहिए यार। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कॉलेज इम्पोर्टेंट है बट सिलेबस नहीं, क्योंकि हम कॉलेज एंड सिलेबस को साथ में ही लेते चलते, तो जो क्लास में पढ़ाते हैं दैट इज नॉट लाइक अप टू मार्क। एंड हम जो अभी देख रहे हैं एआई, तो मैंने एआई पढ़ा है बट जो अभी आ रहा है वो कुछ नहीं पढ़ा है। इवन एमएल, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आउटडेटेड है, 5 साल 10 साल पुरानी चीजें होती है जो पढ़ाते। तो कॉलेज का मतलब वो नहीं है कि सिलेबस ही, तो वो लाइक कंपैरिजन ऐसे मत करना। And हाँ, आगे if you have any opinion then. हाँ, सो आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट। सो ये मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका, तो कि व्हेन आई वाज वर्किंग एट अमेज़न, सो वहाँ पे देयर वाज वन एम्प्लॉय। सो जब भी जैसे कि उसको हम बग मास्टर बोलते थे, कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसा बग होता था तो मोस्ट ऑफ द लोग उसको ही आके पूछते थे कि भाई अभी ये कुछ प्रॉब्लम हो गया है। सो व्हाट वाज ही डूइंग, जो बाकी सबके पास नहीं था ऐसा, तो उसके पास थियोरिटिकल नॉलेज बहुत अच्छा था। कि जैसे कि थ्रेड्स का नॉलेज, जैसे कि अभी अनिकेत ने मेंशन किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, डेटा डीबीएमएस जैसे कि ऐसे सब सब्जेक्ट्स होते हैं, सो दे आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। तो जब भी जैसे कि कोई थ्रेड रिलेटेड बग आ गया है जो कि कोडिंग का बग नहीं होता है जनरली, इफ
अगर उसको डिटेल में तो अभी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उस टाइप का जब भी इस रिलेटेड बग्स आते हैं तो यू नीड थियोरेटिकल नॉलेज उसमें. सो दैट इज वाई कॉलेज एंड उसका स्टडीज इंपॉर्टेंट होता है. नॉट जस्ट कॉलेज, स्टडी इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर वही चीज तुम सीख रहे हो कहीं से तो या दैट इज फाइन, बट कॉलेज एक ऐसे एक्सपोजर दे देता है इसके अंदर. और अगर तुम यही सवाल IIT NIT के स्टूडेंट्स को अगर जैसे कि पूछ रहे हो तो दे विल एक्सप्लेन यू इवन इन डिटेल कि क्यों कॉलेज स्टडीज इंपॉर्टेंट होती है. Okay, so I would like to add one more point. कि मतलब एक बेसिक स्टेटमेंट में बोलूंगा, आई थिंक पीपल अवेयर नहीं है कि जैसे लोगों को बस ये पता है कि ओके मैं बताता हूँ कि कहाँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे हमने कोई किसी ने बोल दिया कि ओके कंप्यूटर्स क्या समझते हैं, तो बोल देंगे ओके बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं. तो लोगों को ये लगता है बाइनरी सिर्फ इंटीजर से कन्वर्ट होता है, और लोगों को ये नहीं पता कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया है, डबल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती है, जिसका आइडिया लोगों को इन सब सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद ही आएगा. और AI इज ऑल अबाउट नंबर्स. GPU कैसे काम करता है, कैसे प्रिसीजन एक्यूरेसी कैसे आती है, तो ये सब चीजें तुम्हें इन्हीं सब्जेक्ट से पता चलेगा. और अच्छा कैंडिडेट तभी, सब एवरेज तो अच्छा परफॉर्म ही कर जाते हैं, एवरेज परफॉर्मेंस का सब भी करते हैं. कहाँ तुम डिफरेंशिएट करोगे वो यही सब्जेक्ट्स तुम्हें बताएंगे कि ओके यार इसे ये क्वेश्चन पूछा. तो अब जैसे कोडिंग ही वो ले लो, कोई एग्जांपल ले लो कि किसी को पूछ लिया कि ओके ओवरफ्लो नाम का कोई एरर एग्जिस्ट करता है, तो एक्चुअली वो है क्या, कहीं तो रुकता होगा ना वो एरर. नाम वाले ओवरफ्लो, तो ऐसा तो नहीं कि इनफाइनेटली चल रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सब चीजें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर्स को अच्छे से समझो, एड्रेसेस समझो, ये सब चीजें समझो, तब पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर कैसे देगा तुम. आई थिंक इसलिए कॉलेज जरूरी है. Also wanted to add one thing. आज ही मेरा ML का प्रेजेंटेशन था, लास्ट प्रेजेंटेशन. ठीक है, हम एज ए MBA स्टूडेंट्स ML सीख रहे हैं, XGBoost कैसे अप्लाई करना है, लीनियर रिग्रेशन कहाँ पे यूज होगा. तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो बस मैथमेटिक्स से कुछ नहीं आएगा. बहुत मैं तो MBA में भी AI सीख रहा हूँ. AI कैसे बनाते, लाइक LLMs कैसे वर्क करते, ML का पूरा फैक्टराइजेशन, बहुत सारी चीजें मैथ्स हमें भी पढ़ाते, वही मैं बोलना चाहता हूँ. तो ऐसा नोशन लाइक नहीं चलना होता है कि इतना आ गया बस दैट्स इट. यू हैव टू बी ओपन फॉर अदर थिंग्स एज वेल. क्योंकि एज अ मैनेजर हमें बोल दिया कि चलो ये डेटा सेट है, सेंटीमेंट एनालिसिस करके दिखाओ इसका, आपको पता ही नहीं है ML कैसे रन करना है, तो क्या करोगे सेंटीमेंट एनालिसिस में. तो बहुत सारी चीजें होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, आपसे रिक्वायर्ड होती है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक 10+ जाओगे ना, तो लोग आपको PPT बनाना भी एक्सपेक्ट करेंगे, ML एल्गोरिथम लगाना भी एक्सपेक्ट करेंगे, एंड आपकी कोर चीज जो आप कर रहे हो वो सब चीजें तो होगी. तो द हायर द पैकेज यू आर एमिंग, higher the skills and things you will be required to perform. That's it. We are also lined up with the biomedical speaker, but right now she is unavailable due to unavoidable circumstances. And now let's move into the Q&A session. स्पीकर्स ने काफी ट्राई करा है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने चैट में ही दे दिए ज्यादातर. Hi Vansh, actually I just want to add one thing कि for some reason biomed panelists could not join. कोई काम होगा तो ही ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी को मतलब मिस किया होगा. बट जितने भी बायोमेड अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगा कि बायोमेडिकल इज ऑल्सो वेरी डिमांडिंग ब्रांच राइट नाउ. और अगर तुम विद इन गुजरात स्टेट में भी देखोगे तो बहुत कम कॉलेज ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफर भी करती है. कुछ तुम्हारे सीनियर्स भी अगर तुम उनको रीच आउट करोगे तो दे आर परसुइंग देयर मास्टर्स फ्रॉम IIT ऑल्सो, दे आर डूइंग देयर रिसर्च. और इसमें भी इफ इन योर टर्म्स आई कैन से तगड़े पैकेजेस आते हैं, बहुत पैसा आता है. तो स्टे ट्रू टू योर ब्रांच. डू नॉट थिंक कि भाई बायोमेडिकल तो सिर्फ गुड सेट के लो स्कोर पे मिल गया या फिर कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए लेना पड़ा. ट्राई करो अपने सीनियर्स को रीच करने के लिए, उनसे
पूछो, अपने प्रोफेसर्स को जेन्युइनली अपने डाउट्स लेके जाओ। आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छी तरह से तुम्हें गाइड करेंगे, क्योंकि बायोमेडिकल जेन्युइनली एक बहुत अच्छी ब्रांच है और इसका फ्यूचर स्कोप भी बहुत है, तो तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। So let's move on to anyone has question. Please ask fast. Some speakers have to go. बायोमेडिकल में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बायोमेडिकल लाइक आप एज ए इंजीनियर भी देख रहे हो, तो दूसरी चीज एक होती है रिसर्च, R&D वगैरह, जो आप मशीन यूज कर रहे हो, सब चीजें। तो R&D में भी थोड़ा देखो, क्योंकि आई नो पीपल जिन्होंने सिर्फ BSc बायो करके भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट मिली है उन लोगों को। लाइक फॉरेन में बहुत बायोमेडिकल का रिसर्च वगैरह होता है, तो वो भी एक बार देखो कि जस्ट नॉट इंजीनियरिंग बट दूसरी जो फील्ड होती है रिलेटेड टू दैट, वो भी आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। एंड अगर इंडिया में नहीं हो तो फॉरेन के कॉन्सेप्ट भी आप एक बार देख सकते हो कि क्या चल रहा है फॉरेन इंडस्ट्रीज में। थैंक यू ऑल द स्पीकर्स फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। लाइक बहुत अच्छा, हमने एक सेशन को ट्राई करा कि थोड़ा लाइट रखे, हर एक ब्रांच इन्वॉल्व हो एंड समहाउ एक क्लियर पर्सपेक्टिव सबको हो, हर एक ब्रांचेस का जो होता है, सब भाईचारे से रहो, मारा मारी मत करना गाइस। हाँ, और भाई कॉलेज में ऐसा मत करना मेरी ब्रांच से बढ़िया है, मेरी ब्रांच बढ़िया है, सबकी ब्रांच बढ़िया ही है, सबको पैकेज तगड़े मिलेंगे। जो मेहनत करेगा वो खुद से स्किल सीखेगा। अगर स्किल सीखने हैं तो क्लब फाइबर में आ सकते हो, हम सिखाते रहते हैं। सेकंड Yes, yes. अरे वही बोल रहा हूँ कि पैकेज का एक्सपेक्टेशन अगर रख रहे हो तो कॉलेज से मत रखना। मतलब कॉलेज में इतनी अच्छी कंपनीज नहीं आती, बाहर भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, लिंक्डइन और ऐसी चीज है। And second thing, we have also shared the speakers details. उनके LinkedIn भी share कर रहे हैं, you can just reach out to them अगर यहाँ पे लोग शर्मा रहे पूछने के लिए। तो speakers also have their commitment, so अगर किसी को कोई question है तो yes, कोई पूछ लो अगर किसी को भी question है तो। Anyone? अगर ऐसा हो तो कोई किसी को ऐसा डर लग रहा हो तो मैसेज कर देना, हम फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर तुम कांटेक्ट कर सकते हो स्पीकर्स को। अरे एक लास्ट चीज में, अगर इफ यू हैव टाइम तो 1 मिनट बोलना चाहूंगा इसके ऊपर ही कि थिंक योरसेल्फ इज लाइक आप क्राउड में हो, एक जंगल में खो गए हो, और इंजीनियर्स का एक पूरा झुंड ऐसा ही है कि इंजीनियर्स एज अ ट्री समझ लो आप। तो अगर आप स्पीकअप नहीं करोगे, आप नहीं बोलोगे, तो आप उसी झुंड में ही रहोगे। एंड अगर आप खुद का नहीं सोचोगे तो आप लाइक दूसरों का तो क्या ही सोचोगे, ठीक है। तो एक बार खुद से भी रिफ्लेक्ट करना इस इवेंट के बाद, क्योंकि मैंने कल ही हमारे प्रोफेसर से कहा कि जब आप बेड पे रात को सोने जा रहे हो, स्विच जब बंद कर रहे हो, उससे पहले एक बार सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लेना कि आज मैंने क्या सीखा। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने प्रोग्रामिंग सीख लिया, VLSI का एक पार्ट सीख लिया। एक जस्ट किसी को हाई, जर्मनी में हाई बोलना भी एक स्किल है, या सीखना ही बोल सकते, ठीक है। तो हर रोज कुछ ना कुछ सीखोगे तो ही आप आगे लाइक कर पाओगे। एंड टू गेट समथिंग न्यू थिंग्स एंड कुछ आगे अपना खुद को बिल्डअप करने के लिए लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड आपको बोलना पड़ेगा, वरना आप उसी जंगल में रह जाओगे एंड सेम ही दिखेंगे। अगर आपको अलग दिखना है तो आपके लीव्स भी चेंज करने पड़ेंगे, आपकी हाइट चेंज करनी पड़ेगी, आपकी ब्रांचेस भी चेंज करनी पड़ सके, ठीक है। फ्रूट्स भी अगर आप अलग लोगों को लाइक अलग ला सको तो बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, लाइक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ। Let's see, like conclusion from my side. I guess सबको अपना अपना कंक्लूजन मिल गया होगा, क्लैरिटी थोड़ी बहुत तो आ ही गई होगी। For more clarity, Club Fiber is there for you. And thank you all the speakers for joining. Avinash, Param, Bhargav, Nikit, and Bhargavi. Like amazing session. Thank you for joining.
Thank you I for would like inviting. thanks for calling me. It's very much Thank you. good. Yeah. हमें Thank तो you. मजा आया. Thank you, लोगों Club को Iber, आया कि ऐसा नहीं? सेशन. लोगों का पता नहीं, मैंने थोड़े बहुत अच्छा समझ लिया बाकी चीजों को. हमारे लिए भी एक I सेशन love रखा था अपने पीयर्स को जानने के लिए, दूसरे ब्रांच को समझने के लिए कि उनमें क्या रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं. अपने ब्रांच में रहेंगे तो रिजिड रहेंगे, और रिजिड तो पेड़ होता है. ठीक है. चलो. Thank you guys. Thank you, for everyone. listening to us for almost 2 hours. थैंक यू. हमारा थोड़ा अगर मेरा कन्वर्सेशन थोड़ा हाँ. लेट हो गया, सो एडजस्ट बाय योरसेल्फ. हाँ, मिच्छा में दुक्कड़म Thank you, अभी thank चल you, रहा है ना. मिच्छा में दुकड़ा. अच्छा मैं लोकड़म. Thank you. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जो भी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि हमें कितना सीजीपीए लाना चाहिए फॉर टू बी द बेस्ट, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि जब ये सेशन शुरू हुआ था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 96 स्टूडेंट्स थे, जो अब हैं 70 टिल नाउ, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन. सो you guys are already ahead of those 26 जो है If ऐसे you are session. taking it seriously. If you are guys have learned anything, if you are serious, जो भी तुम्हें यहाँ से input मिला, तो you are ahead of those 26. Yeah. They are not I ahead will of add one. 26, but I will. ahead of around 100 or 150 are in their class, Okay. respectively. I will add one more point. मैंने इसी सिर्फ पढ़ा है, बट स्टिल आई हैव गुड सीजीपीए. तो सीजीपीए से कुछ नहीं होता, कोई कुछ पूछने नहीं नहीं वाला तुम्हें. किसी ने देखा नहीं अब तक. हाँ, बट कॉलेज में प्लेसमेंट में बैठने के लिए सीजीपीए इज इम्पोर्टेंट. 7+ मेंटेन करना, अदरवाइज कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी. हमारे यहाँ स्कॉलरशिप के लिए मेंटेन करते हैं बस. Yes. एंड थैंक यू आइबर. मतलब तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है एक्चुअली. अ गुड जोन फॉर स्टूडेंट्स. और या कमिंग जीपीए की तो बात ही मत करो. और मेरा सजेशन, ट्राई टू अटेंड एवरी हैकाथॉन और एवरी कंपटीशन, एवरी मेकाथॉन व्हिच यू आर गेटिंग. कभी कभी उन्हीं से ताला खुलता है. अब मेरा टायर 2 कॉलेज था और मैं फॉर्च्यून 500 में आया जस्ट बिकॉज ऑफ हैकाथॉन. हम टॉप 25 में आ गए एंड दे जस्ट ऑफर्ड. सो समटाइम टेबल टर्न्स बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल हैकाथॉन्स. और जितने भी छोटे छोटे सेशन है तुम्हारे कॉलेज में हो रहे हैं, अभी आइबर का जैसे ये सेशन है, या फिर अभी इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर रखा है, ऐसे जो भी सेशन अटेंड करे, आई विल सजेस्ट एवरी स्टूडेंट टू अटेंड इट. ताकि तुम्हें एक अच्छा रैपो बनेगा, एक अच्छी बॉन्डिंग मिलेगी, अच्छी तरह समझ आएगा ओके बाहर चल क्या रहा है. तो जब तुम्हारे हाथ में बीटेक सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट होगा तो तुम्हें पता है हाँ भाई सीन ये चल रहा है, मेरे को इतना तो पता ही है. और तुम्हें थोड़े बहुत एल्यूमिनी भी मिल जाएंगे यहाँ पे जो तुम्हें हेल्प भी कर सके. गाइस आज के लिए इतना इनफ है. स्पीकर्स के सारे कमिटमेंट्स भी है, कहीं और भी जाना है सबको. सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू. All the best. Thank you, speakers. All the best. Thank you. Thank you. Bye bye.